जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I invite our President, Sir, to deliver his formal address on this auspicious occasion. उधर रखना चाहिए, लोकेशन गलत है, कोई बात नहीं। Senior management team of the university, Provost Professor G.R. Sinha, Director Administration Mr. R.B. Panchal, Deputy Director and Campus Director Mr. Mahesh Barot, Assistant Director Mr. Naren Acharya, Deans, Associate Deans of the various schools, faculties of the university, all teaching and non-teaching staff, and my dear students, ladies and gentlemen. Good morning, everyone, and a very warm welcome to you all on this auspicious occasion of the 78th Independence Day of our great nation. I am honored and privileged to wish you a very happy Independence Day and also address you all on this day. As we gather here today, we are not just celebrating a day, but the culmination of a long and arduous journey that led us to the freedom we enjoy today. Our nation's independence was not handed over to us on a silver platter. It was fought for, struggled for, and sacrificed for by countless brave souls who believed in the idea of a free and independent nation. The history of our independence movement is a testament to their indomitable spirit and unwavering courage. The first war of independence in 1857 marked the beginning of a long and arduous struggle. It was followed by a series of movements and protests, each one a stepping stone towards our ultimate goal of freedom. The non-cooperation movement, the civil disobedience movement, the Quit India movement, each of these played a very crucial role in our journey towards independence. Our freedom fighters, from Mahatma Gandhi to Bhagat Singh, from Rani Lakshmibai to Subhash Chandra Bose, and countless others, made immense sacrifices for the cause of our freedom. They faced imprisonment,
torture, and even gave up their lives, all for the dream of an independent India. Their sacrifices serve as a constant reminder of the price we paid for our nation. As we celebrate our independence today, let us take a moment to remember these brave souls. Let us honor their memory by striving to uphold the values they fought for: freedom, justice, and equality. Let us remember that our freedom was hard earned and should not be taken for granted. As we stand here in the heart of Vadodara at GSFC University, we are not just an educational institution, but a beacon of knowledge, innovation, and progress. Our mission is to empower the young minds of India, to equip them with the skills and knowledge to contribute to our nation's growth and prosperity. This year, we have seen the highest admissions in our short but illustrious academic journey of 9 years. So far, we have had 1100 admissions in the current year, more than 1100, and maybe we are touching about 1150. We started with 141 students and 2 programs, and now we have grown over to 2,800 students across 27 diverse programs. This is an evidence for our commitment to provide quality education and our relentless pursuit towards excellence. I would like to take this opportunity to commend the unwavering commitment and dedication of both the teaching and non-teaching staff and even students for their contributions to the growth and development of the university. We have recently signed Memorandum of Understandings with reputed universities and industry organizations such as Gati Shakti University in Baroda, Hoybuk Color Private Limited, again in Ankleshwar, and many more. These partnerships enable us to provide our students with a global perspective, industry-relevant curriculum, and opportunities for internship and placements where we are doing very well. Our promoter, GSFC Limited, have recently acquired 14 acres of land near Dumad for the university, just 9 kilometers from this campus. This is a significant step towards our expansion plans. This land will be used to further our mission of providing quality education and research opportunities to more and more students. Our GSFC company deserves huge accolades for continuous commitment for corporate social responsibility. Our students have been making us proud in various fields, particularly in sports. They have not only excelled in academics, but also in co-curricular activities, providing that they are truly all-rounders, which is part of our vision and mission. I am happy to know that our faculty members continue to excel in the areas of publication, patent, and academic distinctions. We are proud of the ecosystem we have built and are excited about the future of research at our institution. As you are aware, we have an incubation and innovation center which we call
guitar. Many students are actively participating in various guitar activities. These activities provide a platform for students to showcase their talents and creativity, contributing to their holistic development. At GSFC University, we understand the importance of fostering a culture of innovation among our students. I encourage and desire students to be part of these enriching activities, as they not only enhance their skills but also prepare them for future challenges in the ever-evolving global landscape. We are proud to have a strong contingent of 50 NCC cadets, including 17 girls. I think we need to clap. The NCC is not just about discipline and patriotism, it is about shaping the leaders of tomorrow. It instills in our students the values of unity, integrity, and selfless service to the nation and society. Let us also reflect on the vital role of discipline in our lives as university students. Discipline is not just about adhering to rules and regulations, but also includes ethical standards in our conduct. It is the foundation of our success, shaping our character and guiding our actions. Maintaining cleanliness on the campus is a fundamental aspect of this discipline. By keeping our students or surroundings clean, we not only foster a healthy environment, but also show respect for our shared space. Additionally, being disciplined in our behavior ensures the safety and security of our campus as we take responsibility for our actions and protect the property that supports our education. I would like to lay a lot of emphasis on discipline, safety, and cleanliness of the campus. Let us commit to be disciplined individuals, creating a vibrant, safe, and clean campus for one and all. Our journey would not have been possible without the unwavering support of GSFC Limited. Their guidance and support have been instrumental in our growth and success, and we really are indebted to our GSFC company. Looking ahead, we are excited about the Viksit Bharat in the year 2047 initiative. This initiative envisions a transformed India by the 100th year of our independence. As a university, we are committed to contribute our bit to this vision through our research, innovation, and by nurturing the leaders and change makers of tomorrow. Our students, the young Indians, carry the hopes and dreams of 1 billion people. Your energy, your passion, your creativity, and your commitment to making a difference are what we are looking for, and that will drive our nation forward. As we celebrate the 78th year of independence, let us remember that our freedom is not just about living in a free country, but with freedom comes responsibility. The responsibility to use our freedom for the betterment of our society and our nation. The responsibility to uphold the values of our Constitution, namely justice, liberty, equality, and fraternity, is a must
for our nation's progress and to ensure that the benefits of our growth reach every corner of the country and to every section of our society. So let us pledge today on our 78th Independence Day to use our freedom wisely, to fulfill our responsibility diligently, and to work together for a brighter, more prosperous and more inclusive India. Once again, I wish you a very happy Independence Day. Jai Hind. Who will take over? Next. Yes, please tell. Thank you, sir, for your kind words. I would request our Provost, Dr. G.R. Sinha, sir, to please welcome President, sir, with a sapling. गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। अर्थात देवगण भी यह गान करते हैं कि जो भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया, जो भारतवर्ष, जो भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है, वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा धन्य है। नमस्कार सभी को। आप सभी को विदित है कि भारत इस वर्ष अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस निमित्त से हर वर्ष की ही भांति जीएसएफसी यूनिवर्सिटी इस पर्व को बड़े ही उल्लासित रूप से मना रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारी जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री पी.के. तनेजा जी, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा। साथ ही आज का ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय माननीय श्री जी.आर. सिन्हा जी, कुल सचिव श्री आर.बी. पंचाल जी, परिसर निर्देशक श्री महेश बारोट जी, परामर्शक श्री बिमल भयानी जी, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लिबरल आर्ट्स के अधिष्ठाता एवं सह अधिष्ठाता गणों की गरिमामयी उपस्थिति में संपूर्ण होगा। साथियों, friends, GSFC University has a tradition to release Science U magazine biannually. This year, Science U magazine's 11th issue dwells in the field of AI and medical science. It focuses on how the technological transformation and artificial intelligence has started reaching different fields of our life, which we might not have even thought of a few years ago. The current issue of Science U is designed by Mr. Dev Patel from Computer Science Engineering and Ms. Forum Mistry from BSc Chemistry. I invite President Sir, Dr. G.R. Sinha Sir, Shri R.B. Panchal Sir, Shri Bimal Bhayani Sir, and Shri Mahesh Barot Sir, and the students and faculty members of editorial team on stage for the release of Science View magazine. I invite students editorial team 2 on the stage. A big round of applause for the 11th issue of Science U magazine.
Accept President Sir, all are requested to take their general in national also at state level. Bhrugu Yagnik from BTech Computer Science Engineering. He was selected for Republic Day camp at New Delhi and Youth Exchange Program Vietnam or Russia. He is the only cadet from Gujarat state selected for the Youth Exchange Program representing the NCC India delegation at the international level. Also, he was selected for the Gujarat State Youth Parliament 2024 as Member of Parliament at state level. I invite Vrati Arya, Charlene Job, Bhrugu Yagnik and myself Akshat Pandey. We were selected for the Gujarat State Youth Parliament 2024 as Member of Parliament at state level. Now I invite Yadav Pritam Kumar Jasveer Singh from BBA General. He secured third position in State Water Polo, Gujarat State Aquatic Association, 65th Senior Gujarat State Aquatic Championship 2024. Harsh Sachin Vaidya, BTech Computer Science Engineering. He secured third position at national level New India Vibrant Hackathon. Now I invite Devars Shah from BTech Computer Science Engineering, Ashwini Patil, BTech Computer Science Engineering, Rishikesh Singh from BTech Computer Science Engineering, Shreya Pandya from BTech Computer Science Engineering. They were the second runner-up in Open Udo Combat Hackathon at Gandhinagar, headquarters of Udo, on 14th July 2024 at national level.
एक बार जोरदार तालियां इन सभी विनर्स के लिए। साथियों, आप सबको बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हाल ही में गांधीनगर में 16th मराठा लाइट इन्फेंट्री के अंतर्गत आयोजित आर्मी अटैचमेंट कैंप राष्ट्रीय स्तर में हमारी यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को बटालियन इंसिग्निया से सम्मानित किया गया। वे छात्र हैं कॉर्पोरल सौरभ तिवारी फ्रॉम बीटेक फायर एंड EHS, कैडेट सूरज चौधरी फ्रॉम BBA। हम निवेदन करते हैं माननीय श्री अध्यक्ष महोदय से कि वे इन दोनों ही कैडेट को बटालियन इंसिग्निया, जो कि इनका सम्मान चिन्ह है, उससे अलंकृत करें। एक बार फिर इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम निवेदन करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और कुलपति महोदय से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। This day is a good example of unity's strength and is all about celebrating the freedom for which our country has fought for. In the realm of unity where aspirations soar, on this Independence Day, let our spirits explore. In the tapestry of freedom, let our voices shine. A celebration of our nation become a rhythmic rhyme. Now let's reveal in the beauty of traditions, songs and dance, and let the rhythm of our roots recall who we truly are. So here we are commencing our cultural program, and I would like to invite Akshat Pandey from BTech Chemical Engineering to recite a poem. बंद है। नमस्कार सभी को। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री PK तनेजा जी, उपस्थित सभी महानुभावगण, पधारे हुए अभिभावकगण और सम्माननीय मंच को हमारा प्रणाम। आज इसके पहले कविता या उसकी कोई भूमिका बनाएं, आज एक निवेदन आप सबसे हम ये करना चाहते हैं कि इस कविता के बीच बीच में हम जब भी, ऐसे तो मेरा सामर्थ्य नहीं है कि आपको आज्ञा कर सकूं, पर फिर भी चूंकि हम यहाँ सबके लाडले हैं, हम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन इतनी स्वतंत्रता चाहते हैं कि आज जब जब हम आदेश करें आप भारत माता की जय कहें। और आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचे, किस रूप में पहुँचे ये हम बता दिए हैं। बात करें हमारी कविता और उसकी भूमिका की, आप सभी जानते हैं इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूर्ण किए हैं और आज़ादी का अमृत काल भी है। इस अमृत काल में और 77 वर्षों में यदि सबसे ज़्यादा गौरवान्वित किसी ने भारत भूमि को किया है तो वो है भारतीय सेना और उसके जवान। एक बार ज़ोरदार तालियां भारतीय सेना और उनके जवानों के लिए। लेकिन
कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, तो उन तक अपनी कृतज्ञता पहुंचाने में चूक जाते हैं, जो हमारी अपनी जान को दांव पर लगा करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज अपने शब्दों द्वारा हम उस सैनिक का अभिनंदन करने जा रहे हैं जो सीमा पर अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी रक्षा कर रहा है। 4 पंक्तियों से अपनी भूमिका बना रहे हैं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का परिणाम जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का परिणाम जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। अपनी मूल कविता शुरू करने जा रहे हैं। देखिए अपने शब्दों द्वारा हम किस प्रकार अभिनंदन करते हैं उस सैनिक का। बज उठी चतुर्दिक रणभेरी, बज उठी चतुर्दिक रणभेरी, सज उठे वीर परिधानों में, छाया है जोश छित अंबर तक, परिवर्तन है दिनमानों में, मस्तक पर भारत की माटी, माता का ले आशीर्वाद, चल दंभ कपट को धूल चटा, बढ़ चले काल सम निर्विकार, मदमस्त दिशाओं में डोले, मदमस्त दिशाओं में डोले, अंगड़ाई ली बाजू खोले, माँ बाप बहन भाई सबसे चलते चलते इतना बोले। वो सैनिक जो अंतिम बार अपने परिवार को छोड़ करके सीमा पर जा रहा है, वो चलते चलते क्या बोला है? माँ बाप बहन भाई सबसे चलते चलते इतना बोले, मिलजुल करके रहना सीखें, जिसमें हम सबसे ज़्यादा मात खा जाते हैं। मिलजुल करके रहना सीखें, सुख दुख सब अंगीकार रहें, हम सैनिक हैं भारतवासी, सब एक साथ तैयार रहें। शब्दों की महज वसीयत है, प्रण से न कभी फिरने देना, बलिदान अगर मैं हो जाऊं, आंसू न एक गिरने देना। जो अजर अमर है अक्षुण है, निसंदेह वो सैनिक अजर है, अमर है और अक्षुण है। जो अजर अमर है अक्षुण है, मत भूल करुण क्रंदन करिए, जो अजर अमर है अक्षुण है, मत भूल करुण क्रंदन करिए, भारत माता की जय कहकर सैनिक का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की पंक्तियों में वो दृश्य क्या रहा होगा जब वो सैनिक अंतिम बार सीमा पर जा रहा है, सेना की ओर जा रहा है। और देखिए सैनिक के 2 परिवार होते हैं, एक उसका व्यक्तिगत परिवार और एक सार्वजनिक परिवार। व्यक्तिगत परिवार जो उसके अपने सगे माता पिता भाई बहन हैं, और सार्वजनिक परिवार चूंकि सैनिक की, इस भारतीय सेना की ये मानसिकता होती है कि ये पूरा राष्ट्र, ये पूरा देश हमारा परिवार है और इसलिए हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। इन दोनों ही परिवारों की भावनाओं में कितना अंतर होता है ये आपको शब्दों द्वारा बता रहे हैं। वो दृश्य क्या रहा होगा वहां पर? चल पड़ा वीर आशीष लेकर, मुस्कान अनूठी लगती थी। संभावित परिणाम उन्हें भी पता है, पर फिर भी साहस से मुस्कान के साथ चल पड़े हैं। चल पड़ा वीर आशीष लेकर, मुस्कान अनूठी लगती थी, सच्चाई थी सम्रांगण की, बाकी सब झूठी लगती थी। शायद उसको परमेश्वर ने, निसंदेह परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान इन्हें दिया है जो हमारी ये रक्षा कर रहे हैं। शायद उसको परमेश्वर ने रक्षाव्रत का उपहार दिया, फूला न समाता था योद्धा, भारत माता ने प्यार दिया। कुछ गांव गली खेड़े वाले, देखिए ये सैनिक के जीवन की विडंबना है कि दोनों ही परिवार की भावनाएं कितनी विपरीत हैं। कुछ गांव गड़ी खेड़े वाले पुष्पों की वर्षा करते थे, कुछ अश्रुपूर्ण लोचन देखे जो अनहोनी से डरते थे। नैनाभिराम वह दृश्य रहा, परिदृश्य बदलने वाला था। नैनाभिराम वह दृश्य रहा, परिदृश्य बदलने वाला था। चल पड़ा वीर आशीष लेकर, पी चुका शौर्य की हाला था। हर पृष्ठ बना ऐसा स्वर्णिम, हर उस सैनिक का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, पर यहां तो पूरा का पूरा पृष्ठ ही स्वर्णिम है। हर पृष्ठ बना ऐसा स्वर्णिम, सब यही लालसा पाले हैं। अनुराग राष्ट्र की रक्षा का, उसमें ही गुलमत वाले हैं। जो रुके नहीं, जो झुके नहीं, जो रुके नहीं, जो झुके नहीं, उन भावों का वंदन करिए, उन भावों का वंदन करिए। भारत माता की जय कहकर सैनिक का अभिनंदन करिए, सैनिक का अभिनंदन करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। मूल कविता यहीं समाप्त कर रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियों से आपको, इस देश को, इस राष्ट्र को आश्वस्त कर रहे हैं, ये आश्वासन दिलाने जा रहे हैं क्या कि गाया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, गाया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान, जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, ऐ हिंद तू आजाद है आजाद रहेगा, ऐ हिंद तू आजाद है आजाद रहेगा। अंतिम प्रार्थना आपसे यही है कि भारत माता की जय कहकर सैनिक का अभिनंदन करिए, भारत माता की जय कहकर सैनिक का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। After listening to the beautiful words by Akshat, let's enjoy a combined performance by Theatre, Music and Dance Club. सन 1907 के 27 सितंबर को ब्रिटिश भारत के उस समय के लायलपुर जिले, वर्तमान पाकिस्तान के बंगा गांव में एक पंजाबी जाट सिख परिवार में क्रांति की ज्वाला जन्म लेने वाली थी। प्यारा सिंह संधू और उनकी पत्नी विद्यावती के यहाँ उस दिन दूसरी संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम भगत सिंह रखा गया। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी और पूर्ण असहयोग आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने स्कूल का बहिष्कार किया और अंग्रेज़ों के विरोध में राष्ट्रीय सभा के निर्देशों का पालन किया। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह निराश हुए। इस घटना ने उन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दिया। 1920 में क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और लेखक लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के ब्रिटिश फैसलों का विरोध किया। उनके साथ 2 युवा क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव कंधे से कंधा मिलाकर चले। उनका दृढ़ निश्चय था कि साइमन को भारत में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। Go back! Go back! Go back! Go back! Simon! 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 Go back! After me! Calm down, you filthy rascals! You Indians! I think you have forgotten your place! Officers, lathi charge! Simon! Simon! Get me down! Lalaji! Alive! Lalaji! 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 Leave! Hello. आज उन अंग्रेजों ने लाला जी की हत्या कर दी और हम वहां होकर भी कुछ न कर पाए। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर चाटा है ये चाटा। बच्चा ही क्या है ये बात में? अब तो मौत के दौर चलेंगे। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं इन अंग्रेजों को हिंदुस्तानी क्रांति का साथ सकते रहना होगा। तुम्हारे क्या विचार है भगत? विचार नहीं, जवाब है। उस कोर्ट ने लाला जी की हत्या की है।
इसकी माफी वही मांगेगा। स्कॉट को शूट कर देंगे हम। और ये खौफ जरूरी भी है। मैं करूंगा उसका खून। ये खून नहीं राजगुरु, हम क्रांतिकारी है, और एक क्रांतिकारी किसी मासूम इंसान की जान लेने से पहले अपनी जान देना पसंद करेगा। लेकिन वो स्कॉट, वो इंसान की खाल में हैवान है, हैवान, उसे मरना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद 17 दिसंबर 1928 की सुबह सुखदेव द्वारा रची गई योजना को अंजाम देने के लिए भगत सिंह और राजगुरु लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर छिपे हुए थे। उनका साथ देने के लिए जय गोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद थे। मैं किसी हिंदुस्तानी का खून बहाना नहीं चाहता। वापिस लौट जा। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। वक्त में भी हम न खोए हौसला, मिलके साथ चलने का यूं कर ले फैसला। कि हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जाए सरफरोश है। ईद का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाएंगे, शान से सभी को बताएंगे, जीतेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर,
17 दिसंबर 1928 की घटना के बाद भी भगत सिंह नहीं रुके। उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई भाषण दिए, लेख लिखे और सभी को एकजुट होने की शिक्षा दी। आजादी हमारा मकसद नहीं, ये क्या कह रहे हो भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं। आजादी का मतलब ये नहीं कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर रईस और अभी हिंदुस्तानियों के हाथ में आ जाए। क्या किसी ने सोचा क्या किसान वर्ग को हक मिलेगा? क्या अरे वो अंग्रेज तो अभी से अलग करने में लगे हुए हैं। ऐसे चलते रहे तो दुश्मनी मिलेगी, आजादी नहीं। आजादी लड़कर मिलेगी। This is not violence, this is action. अगर वो मेरी बात को पूरी तरह करेंगे, I'll attack, I'll react. इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। स्पष्ट विचारों, तीखी आवाज और अदम्य साहस। भगत सिंह वे क्रांतिकारी जिनकी दमदार गर्जना ने भारत की धरती को हिला दिया। लेकिन क्या हुआ? इतने स्पष्ट विचारों को जनता के सामने रखने के बाद भी क्या बदलाव आया? नहीं, जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भगत सिंह निराश थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों का अत्याचार और निर्दयता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच महात्मा गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की। इसका मतलब था कि भारत अंग्रेज़ों का अधीनस्थ शासन होगा, लेकिन शासन करने वाले भारतीय होंगे। भगत सिंह के लिए यह अस्वीकार्य था। उन्होंने सोचा, क्या यह स्वतंत्रता है? क्या हम सिर्फ शासन के चेहरे बदल रहे हैं, जबकि असली शक्ति अभी भी अंग्रेज़ों के हाथों में होगी? उनके मन में क्रांति की लहर उठने लगी। उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया है अंग्रेज़ों की नींद तोड़ने का। अब समय आ गया है पूरी ताकत से लड़ने का। भगत सिंह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। हम यहाँ इकट्ठा हुए एक सवाल के जवाब के लिए। कैसा सवाल भगत? यही सवाल आजाद जी कि क्या नए जुल्म ढाए इन अंग्रेजों ने हमारे मासूम देशवासियों पर। सुखदेव, हमारे हिंदुस्तानी परिवार पर कहो, हम उन अंग्रेजों से आजादी दिलाने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये जनता उन्हीं अंग्रेजों की नींद सो रही है। कोशिश नहीं बटोरे शब्द। और सवाल ये नहीं कि कब तक हमारा हिंदुस्तानी परिवार इन अंग्रेजों की कहते अपने ही वतन में सोता रहेगा। समय आ गया है भगत, सबको दिखाने का कि एक जागरूक क्रांतिकारी सोती हुई आवाम को और जागरूक और ताकतवर कैसे बना सकता है। ताकत हम नहीं, ताकत हमारी आवाम है। सही कह रहा है भगत। हम तो क्रांतिकारी है, और क्रांतिकारी तो तब जब देश आजादी की शपथ ले रहा होता है, तभी आजाद हो जाता है। लेकिन हम उन्हें नींद से कैसे जगाए, कैसे उन्हें एहसास दिलाए कि ये करोड़ों हिंदुस्तानी हाथ इन लाखों अंग्रेज लकड़ियों को आसानी से तोड़ सकते हैं। धमाका करके पार्लियामेंट में। लेकिन भगत, वहाँ हिंदुस्तानी भी होंगे। वो वैसी जगह देख के फोड़ा जाएगा जहाँ किसी को कोई हानि ना हो। हेलो हेलो। इनकलाब जिंदाबाद। आज़ाद जी ने भगत सिंह की योजना की सराहना तो की, परंतु स्वयं वहां जाने के उनके निर्णय का कड़ा विरोध किया। सॉन्डर्स हत्याकांड अभी ताज़ा था और आज़ाद जी भगत सिंह को खोने का डर सता रहा था। उन्हें लगता था कि अगर भगत सिंह पकड़े गए तो क्रांति का सूरज अस्त हो जाएगा। लेकिन भगत सिंह के आग्रह और साथियों के समझाने पर आज़ाद जी मान तो गए, मगर मन ही मन बेचैन रहते थे। रातों को नींद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे भगत सिंह को हमेशा के लिए खो देंगे। उधर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त संसद में बम फोड़ने की अपनी योजना पर अडिग थे। 8 अप्रैल 1929 का दिन करीब आ रहा था और क्रांति की आग धीरे धीरे तेज हो रही थी। अब देखिए दिन 8 अप्रैल 1929, समय सुबह के 12 बजे।
जब संसद में हुए धमाके की खबर वायसराय तक पहुंची तो वे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि भगत सिंह भी अन्य क्रांतिकारियों की तरह हिंसा का रास्ता अपनाएंगे और भाग खड़े होंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह ने बम तो फोड़ा लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाई और उन्होंने स्वयं ही हथियार डाल दिए, हथकड़ियां भी पहन ली, तो अंग्रेज हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह युवक आखिर है कौन और करना क्या चाहता है। कुछ दिन बाद एक और खबर ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह ने जेल में अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। भगत सिंह के अदालत में दिए गए जवाबों ने भी अंग्रेज़ों के लिए यह साफ कर दिया था कि वे कोई आम क्रांतिकारी नहीं है। भूख हड़ताल ने अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया था। वे समझ गए थे कि भगत सिंह और उनके साथियों का जज्बा कितना मजबूत है। भगत सिंह को लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ ही रही थी। लोग उन्हें देशभक्त के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेज़ों को डर था कि अगर भगत सिंह की भूख हड़ताल के दौरान कुछ हो गया तो जनता में गुस्सा फूट पड़ेगा। अंग्रेज़ अधिकारी भगत सिंह और उनके साथियों को किसी भी कीमत पर भूख हड़ताल तोड़ना चाहते थे। वे जेल में तरह तरह की यातनाएं देने लगे। उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता था। जेलर और अंग्रेज़ अधिकारी उनकी कमरों में घुसकर उन्हें दूध पिलाने की कोशिश करते थे। भगत सिंह और उनके साथी दृढ़ता से विरोध करते, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी हार नहीं मानते। भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह ने कहा था, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूँगा। उनकी इस दृढ़ता ने देशवासियों को प्रेरित किया। कब तक ऐसे भूख हड़ताल करोगे? बोलो, क्या कहना है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इनकलाब, इनकलाब। मान जाओ, मैं रुकने नहीं वाला और मैं नाफरमानी नहीं देख सकता। आप अपने करिए, मैं अपना जिंदगी का हक अदा करूंगा। तीन दिनों से इन्होंने पानी भी नहीं दिया। अरे जालिमों, पानी तो दे दो, पानी तो दे दो। ये दत्त भी तो पागल है। कल रात एक मुट्ठी लाल मिर्च निकल गया। सोच रहा था जब साले अंग्रेज दूध पिलाएंगे कैसे, जब गले से उतरेगा ही नहीं। दे दो दूध। सालों, इंसान हो या इंसान की खाल में राक्षस, पानी की जगह दूध देते हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अब एक नज़र हम भगत सिंह और उनके साथियों की आभा पर डालते हैं। किस तरह और क्यों वे जनता के दिलों में राज करते थे। उनकी कहानी सुनकर मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेरी रूह तक सिहर उठी है। आज जब मैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनके कदमों पर चल रहा हूँ। आओ हम सब नारा लगाएं, अगर चाहे तो मेरे पीछे दोहराएं। आज भी जिंदा है शहीदों का खून, काफ़ी है इनकलाब की एक छोटी सी बूंद। आगे देखते हैं भगत सिंह और उनके साथियों का अदालत का एक किस्सा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है पूरे देश को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक आवाज है इस पक्षपाती सरकार को दबाने के लिए और सोती हुई आवाम को जगाने के लिए। बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। समझ ही गई है तो आ जाइए साथ निभाने के लिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अपना पहला विटनेस बुलाने की परमिशन चाहता है। परमिशन ग्रांटेड। अरे बुलाइए, बुलाइए। बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ। Your Honor, this is
Handcuff them. इनकलाब 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 कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? हम एक बार गले मिलने के बाद मिल लो गले। छब्बीस अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। उनसे बोले कि स्टैंडिंग माइक चाहिए। स्टैंडिंग माइक चाहिए। एक चाहिए, गिटार वाले को चाहिए, गिटार वाले को चाहिए। दिया ना एक गिटार, वो फ्लूट के लिए, गिटार के लिए चाहिए। सर एक और गिटार में सर जैक वर्क नहीं कर रही, तो एक स्टैंडिंग माइक चाहिए। एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक गिटार के लिए भी चाहिए, वो गाने के लिए एक गिटार के लिए चाहिए। सर गिटार के लिए गिटार
हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 ऑन नहीं हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो
जैसा कोई नहीं है, हंसी नहीं सौ में दुनिया गुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया था बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जहाँ देखूँ वहाँ मैं तेरा हूँ दीवाना, मैं चुमू ना चुगाओ तेरे प्यार का सजाना। मैं जीना नहीं सोच नहीं दुनिया की दौलत नहीं, बस लौटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर जब तेरी होती है प्यार की, दुनिया तब तो मेरी चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सोना जैसा चांद सी बने प्यार में। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम म्यूजिक क्लब की ओर से उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप यह गीत प्रस्तुत करना चाहेंगे।
बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति म्यूज़िक क्लब, थिएटर क्लब और डांस क्लब के सभी छात्रों के द्वारा। एक बार ज़ोरदार तालियां इन तीनों क्लब के विद्यार्थियों के लिए आप बजा दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उतनी ही सार्थक बात है जितना कि सवेरे सूरज का निकलना और शाम को अस्त हो जाना। आप जानते हैं भारतीयता हम सब में है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये भारतीयता क्या है? यदि हम आत्ममंथन करें तो हमारे संस्कार, पुराण, वेद, हमारी बड़ी बड़ी जो किताबें हैं ये क्या कहती हैं? रामायण का एक प्रसंग है कि जब राम जी रावण का वध कर देते हैं और उसके बाद वापस जाना होता है तो विभीषण जो है निमंत्रण देते हैं, आप रुकिए कुछ दिन, हमारी लंका में हम आपका स्वागत करेंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया कुछ दिन रुक जाते हैं, तो पूरी लंका ही सोने की है। तब राम जी कहते हैं, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जिस राष्ट्र में भगवान भी मनुष्य अवतार लेकर के उस भूमि का बखान करते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, वो भूमि अपने आप में दिव्य है, पावन है। और भारतीय संस्कार, हमारी संस्कृति का मूल ये है कि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो हमारे संस्कार हों या हमारी पूजन पद्धति, आप जानते हैं हम हर क्षेत्र में, हर चीज़ में कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जानते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कार में प्रकृति पूजन का बड़ा विधान है। प्रकृति पूजन क्या है? प्रकृति पूजन कृतज्ञता है। जिस देश में नदी को पूजा जाता हो, पहाड़ को पूजा जाता हो, वृक्ष को पूजा जाता हो, पौधे को पूजा जाता हो, धरती को पूजा जाता हो, आसमान को पूजा जाता हो, सूर्य को पूजा जाता हो, चंद्रमा को पूजा जाता हो, नव ग्रहों को पूजा जाता हो, वहाँ का संस्कार यही होगा कि आभार प्रकट किया जाए। आज का ये पूरा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है और हमारी रिवाज है कि हर कार्यक्रम के बाद हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन चूँकि हम अब कार्यक्रम के अंत में हैं तो आभार मुझे प्रकट करना है। सूची बड़ी लंबी है, लेकिन सर्वप्रथम किसी का नाम यदि आता है तो वो हैं हमारी यूनिवर्सिटी के कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, शालीन, विनम्र, तेजस्वी, यशस्वी, बहुआयामी, विवेकी, धैर्यवान, गुणवान और अनुभवी, ये 11 गुण हमने वर्णन कर दिए हैं उनके। और हमारे अध्यक्ष महोदय जिनका हमें धन्यवाद करना है। हम तो कभी कहने में चूकते नहीं हैं, हम हमेशा ही कहते हैं, हमको रिपीटेशन करने में कोई संकोच नहीं कि जीएसएफसी यूनिवर्सिटी ये हमारा एक परिवार है और इस परिवार के हमारे मुखिया अध्यक्ष महोदय हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इनके नेतृत्व में हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं और ऐसा हम संकल्प लेते हैं कि आगे भी करेंगे। और हर कार्यक्रम में, हर चीज़ में जो इनका साथ मिलता है, क्योंकि हमारा तो सौभाग्य रहा कि प्रत्यक्ष रूप से कई बार भेंट हो जाती है, मुझे मिलकर ये लगता है कि इनका विद्यार्थियों के प्रति कितनी आत्मीयता है, कितना अनुराग है, ये प्रेम है उनका विद्यार्थियों के प्रति कि कुछ भी हो तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स का ज़्यादा चलना चाहिए, ये उनकी भावना रहती है हमेशा। इसलिए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं हमारे वरिष्ठ व्यवस्थापन समिति, सीनियर मैनेजमेंट, आज ट्रांसलेशन भी करके हम देंगे, जो हमारे कुलपति महोदय माननीय श्री GR सिन्हा जी, कुल सचिव महोदय माननीय श्री RB पंचाल जी, परिसर निर्देशक हमारे श्री महेश बारोट जी, परामर्शक श्री बिमल भयानी जी, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लिबरल आर्ट्स के सभी अधिष्ठाता एवं सह अधिष्ठातागण, इन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। इनके साथ के बिना कोई भी कार्यक्रम सफलता से करना, सुगमता से करना संभव नहीं है। एक विशिष्ट मेंशन यहाँ पर मुझे जिसका नाम लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का हमेशा मंत्र ये रहता है कि हर कार्यक्रम हो फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो एक सेल हमारे यहाँ बना हुआ है, एक हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे लिए हैं, तो हर कार्यक्रम ये आयोजन करवाते हैं। इनको ना ही हम केवल अपनी कृतज्ञता इन तक व्यक्त करेंगे, अपितु हम इनको बधाई भी देंगे कि आज का एक कार्यक्रम बड़ा ही सफलता से आयोजन हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी के
श्री के संतोष कुमार जी, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड एल्यूमिनी इंटरेक्शन, उनके साथ श्रीमती नेहा पुजारा जी, जो सह अधिष्ठाता हैं हमारे दोस्त। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। आज के मुख्य आयोजक ये रहे, नेहा मैडम का विशिष्ट योगदान रहा, इसके लिए बड़ा धन्यवाद नहीं दिया था। और साथ ही साथ जिनका धन्यवाद यदि मैं जीवन पूरा लगा दूं तो भी नहीं कर सकता, पर फिर भी यहाँ कहना ज़रूरी है, मेरे शिक्षकगण जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। आपके बिना तो ये कार्यक्रम संभव है ही नहीं। और क्योंकि मैंने जैसा बोला, फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टूडेंट्स लोगों का हमेशा धन्यवाद रहता है, क्योंकि श्रोता जनता जब तक किसी भी कार्यक्रम में नहीं आती, हमारे यहाँ तो जनता को जनार्दन कहा गया, तो आपकी महिमा हमसे ज़्यादा है, तो इसलिए आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। पधारे हुए सभी अभिभावक गणों का हम धन्यवाद करते हैं। स्पेशल मेंशन के साथ हम धन्यवाद करते हैं आईटी टीम का। आज की ये बड़ी मांग है, आज की डिमांड है, इनके बिना भी कोई कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो सकता। हम धन्यवाद करते हैं प्रचार प्रसार विभाग अर्थात मार्केटिंग टीम का, इनकी वजह से भी हमारा कार्यक्रम बड़ी सुगमता से होता है। साथ ही सुविधा विभाग, फैसिलिटी डिपार्टमेंट जो हमारा है, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज का कार्यक्रम बड़ी ही सफलता से यहीं संपूर्ण होता है। आप सभी के योगदान से सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां, जितने नाम हमने यहाँ लिए हैं और जितने नहीं लिए हैं, भूल गए हैं, उनके लिए भी बजा दीजिए। विशिष्ट तालियां हमारे वरिष्ठ व्यवस्थापन समिति, सीनियर मैनेजमेंट टीम के लिए बजा दीजिए। अब अंत में हमने धन्यवाद तो कर दिया फैसिलिटी डिपार्टमेंट का, सुविधा विभाग का, लेकिन उसका कारण कई हैं। मुख्य कारण ये था कि इन्होंने आपके और हमारे लिए बड़े ही सुंदर जलपान की व्यवस्था करवाई हुई है, इस वजह से इनका कृतज्ञता जरूर हमें देना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि जलपान करके ही, ग्रहण करके ही आप घर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।